A very good morning and a Shubh Deepavali to all the NewsX viewers. I'm Shivani Singh and the top story that we are looking at today is pollution in Delhi. Now, anti-pollution curbs under GRAP 2 have been invoked in Delhi and surrounding areas. Implementation of actions under stage 2 of the extant schedule of GRAP comes into immediate effect. The curbs under GRAP 2 are invoked when the air quality falls under very poor category. 24 out of 38 areas of Delhi NCR are in the red zone. As the capital, air quality dipped ahead of Diwali with the AQI crossing 400 in some areas. Now viewers, I think we should let you see for yourselves on your screens what exactly the AQI in every area is. So let's look at central Delhi first. In central Delhi, it is 333 as you can see in Pusa. Also, it's 350 in Chandni Chowk, and at Mandir Marg also 378 and Lodhi Road 378. So clearly on your screens you can see that these are very hazardous levels of air pollution. Remember viewers, just to jog your memory, according to the Central Pollution Control Board's air quality standard, AQI of 0 to 50 is in the good category. AQI from 51 to 100 is satisfactory. AQI 100 to 200 is moderate. 201 to 300 is around poor, 300 to 400 is very poor, and 400 above is severe. So clearly on your screens you can see all those red marks that are there, red flags actually, that is there on the screen. Over here, let's go to Ghaziabad. Over here in this is Anand Vihar. Anand Vihar is 409, which is hazardous. You can see clearly on your screens, and 333 at Chandni Chowk. So clearly you can see that most of the areas are in hazardous zone. In Parpatganj in Delhi, it's at 355. Let's zoom out and let's see if we can find what exactly is the situation in Gurugram. So Gurugram is here and you can see it's 329 in sector 51 of Gurugram. So clearly hazardous air quality index over here as well. People will in fact have a lot of problem in breathing in this polluted air. Let's go across to Pusa 2, which is again 350, and one of the highest that I can see is Punjabi Bagh, which is 426, and clearly it is beyond the hazardous level. And 603, this is astonishing, 603 over here in Anand Vihar now. We clearly saw that this is updated just 4 minutes ago. It's 603 on the AQI index, clearly air that you should not breathe. Let's go across to north, and over here at Jahangirpuri also the numbers stand at 471. So clearly viewers, you can see that the air quality index across Delhi has decreased, and this is just before Diwali. Also you can see that GRAP 2 measures have now been implemented by the government. Over here in Okhla it's 309, and Mathura Road also sees 337, which is hazardous. So clearly on your screens viewers, you can see how most of the areas are red across Delhi NCR region, and even in Rohini it's around 390. So Delhi has started breathing polluted air this Diwali. I want to go across to my colleague Devendra Kaushik, who is in Faridabad, also Aditya Vadhavan, who is in Delhi, Anil Chaudhary, who is in Ghaziabad, and Ali Khan, who is from Noida. So all of these reporters are on the ground getting you the ground reports of how actually Delhi is looking right now in the morning. Let me go across to Aditya. Aditya, what is the situation in Delhi right now? You're standing there. Get us a
clear visuals of what actually the smog situation is? Index has crossed the 300 mark. It is in a very poor category, and today is Diwali, and it is expected to spike even more. If clearly, if you see around the sky, the clearly haze is present. The haze is so much that it is causing irritation in eyes. All these people who have some comorbidities, who have nausea, headache, will definitely have problems in breathing. Asthmatic patients and bronchitis patients. So indeed, the situation is very, very tense. And at this juncture, the only ways to what steps are taken by the government of the day to control the situation, because today is Diwali, and the court has also allowed that crackers can be burned. So we could expect the pollution to spike even further in Delhi. Yes, back to you. Right. I want to go across to Faridabad, which seems to be one of the worst affected areas as we saw on the map earlier. देवेंद्र, वहाँ पर क्या स्थिति है, आप प्लीज़ हमें बताएं और दिखाएं कि कैसा है, एयर क्लियर है, आपको क्या ब्रीदिंग में दिक्कत आ रही है वहाँ पर? देखिए, अगर सुबह के वक्त की बात करें तो निश्चित तौर से पॉल्यूशन फरीदाबाद का भी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो फरीदाबाद का एक हिस्सा है बल्लभगढ़, जहां 315 पर AQI लेवल पहुंच चुका है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो ग्रेड 2 जो लागू किया गया है, कहीं ना कहीं बढ़ता पॉल्यूशन इसकी वजह है। और दिल्ली से सटा फरीदाबाद जहां पूरी तरह से, क्योंकि औद्योगिक नगरी भी इसको कहा जाता है, तो फरीदाबाद पॉल्यूशन के मामले में कई बार विश्व में नंबर 1 आ चुका है। पॉल्यूटेड सिटियों में शुमार फरीदाबाद में अब लगातार पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। देखिए, तस्वीरों में भी अगर देखेंगे तो सुबह का वक्त है, लेकिन चूंकि थोड़ी यहाँ धुंध सी भी आपको दिखाई देगी आसमान की तरफ अगर देखें तो, क्योंकि सांस लेने में सुबह के वक्त में लोगों को खराश महसूस हो रही है। चूंकि अब दीपावली है और दीपावली पर पटाखे भी चलाए जाएंगे, तो अंदेशा यही जताया जा रहा है कि अभी AQI लेवल 400 के पार भी फरीदाबाद का पहुंच सकता है। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि लोगों के लिए जैसे जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ेगा तो लोगों के लिए भी उतनी ही परेशानी बढ़ेगी निश्चित तौर से। क्योंकि हालांकि पॉल्यूशन को लेकर अधिकारियों की तरफ से यह भी कहा जा रहा है, HSPCB हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि पहले से फरीदाबाद की रैंकिंग में सुधार आया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिन किस तरह के होंगे। जब ग्रेड 3 और 4 की स्टेज लागू होगी तो निश्चित तौर से लोगों के लिए भी परेशानी बढ़ेगी और चुनौती अधिकारियों के लिए भी होगी कि कैसे इस जहरीली हवा का असर कम किया जाए। तो ये तमाम कोशिशें चुनौती के तौर पर फरीदाबाद में भी अधिकारियों के लिए होंगी और लोगों के लिए भी, चूंकि हिदायत कुछ दी गई है, जो ग्रेड 2 के नियम है उनको सख्ती से लागू करने की बात की जा रही है। चाहे सड़कों की सफाई की बात हो, इसके साथ साथ में कंस्ट्रक्शन साइट पर पानी के छिड़काव को लेकर भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। जगह जगह कूड़ा जलाने की अगर स्थिति है तो उनके चालान करने के लिए भी टीमों का गठन कर दिया गया है। खासतौर से अगर निगम की बात करें, नगर निगम के अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो यहाँ पूरी तरह से जो हवा में जहर फैला हुआ है, जहरीली हवा का असर कम हो, इसको लेकर तमाम तरह की कोशिशें, पुलिस की जिम्मेदारी भी लगाई गई है। रेड लाइट पर जब भी गाड़ियां रुकती हैं, क्योंकि बताया जाता है कि 28% के आसपास का जो पॉल्यूशन है वो गाड़ियों के धुएं से होता है, और ऐसे में रेड लाइट पर अगर ज्यादा देर गाड़ी रुकती है तो पॉल्यूशन का लेवल फरीदाबाद में भी दिखाई देगा। हम देख रहे हैं कि त्योहारी सीजन है और ऐसे में कई जगह जाम की स्थिति हमें देखने को मिल रही है। एक वजह ये भी पॉल्यूशन बढ़ने की बताई जा रही है। इसके साथ साथ में सड़कों पर उड़ती धूल और जो महीन कण है वो लोगों के सांसों के जरिए शरीर में जा रही है, और ऐसे में उनके लिए हेल्थ की प्रॉब्लम भी दिखाई देगी। चाहे खासतौर से गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे और जो बुजुर्ग सांस की जिनको बीमारी है उनके लिए भी आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की जाती है। हम आए साल देखते हैं कि मास्क लगाने की हिदायत दी जाती है, बेहद जरूरी हो। घर से बाहर निकलने के लिए उनको तभी कहा जाता है, घर पर रहने की भी एडवाइजरी जारी की जाती है। लेकिन अब चूंकि दीपावली है, उसके बाद छठ पर्व तक पॉल्यूशन का जो लेवल है पटाखे चलाने की वजह से, हालांकि एक अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ग्रीन पटाखे चलाने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ में ग्रीन पटाखों के साथ साथ में और अन्य तरह के भी कई पटाखे चलाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो पॉल्यूशन का लेवल है वो फरीदाबाद में भी आने वाले दिनों में और बढ़ता हुआ देख सकते हैं। जी I want to cut across to Ali Khan if he is joined us from Noida. अली, आप हमें नोएडा की स्थिति बताइए, क्योंकि हमें देखा है कि 350 तो ऑलरेडी क्रॉस हो गए, अब ग्रैप 2 लेवल्स मेजर्स को भी इम्प्लीमेंट किया गया है। तो आप वहाँ की स्थिति बताइए कि अभी क्या है नोएडा में, कैसी एयर क्वालिटी है?
नोएडा की स्थिति बेहद खराब नजर आ रही है क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है। आज का AQI जो है लगभग 350 से ज्यादा का बताया जा रहा है। जगह जगह पर डिफरेंट वेरिएशंस हैं, जिसको लेके अब ग्रैप 2 के नियम भी लागू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, नोएडा अथॉरिटी लगातार उपाय कर रही है, पर कहीं ना कहीं वो उपाय कारगर नहीं साबित हो रहे हैं। आपको बता दूं, दिवाली का त्योहार शुरू हो चुका है। कल पहले दिन था जब दिवाली पे पटाखे फोड़े गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइंस हैं कि ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल किया जाए, पर कहीं ना कहीं ग्रीन क्रैकर्स की आड़ में प्रतिबंधित पटाखों का भी लगातार इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से लगातार ये करंट एक स्पाइक AQI में आया है, जिसके चलते अब ये नोएडा की और दिल्ली NCR की हवा जहरीली हो चली है। अब इसको लेकर लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को गले में खराश, आंखों में जलन जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। तो इस तरह के मरीज भी अब जिला अस्पताल पहुंचने लगे हैं, जिन्हें गले में खराश है, आंखों में जलन संबंधित है। वहीं जो नोएडा का स्वास्थ्य विभाग है, उसने भी गाइडलाइंस जारी करी हैं। जो बच्चे और बुजुर्ग हैं, उन्हें घरों से बाहर, अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो घरों से बाहर कम निकलें। एस्थमेटिक पेशेंट्स को घरों में रहने की सलाह दी गई है, मास्क का उपयोग करने की सलाह दी गई है। और घरों में लोग एयर प्योरीफायर की भी, एकदम आपको बता दूं कि दिवाली के मौके पे, धनतेरस के मौके पे लोग ज्यादा शॉपिंग करते हैं। तो करंट जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक एयर प्योरीफायर की बहुत ज्यादा खरीद की गई है। इस धनतेरस और दिवाली के मौके पे लगातार बहुत एयर प्योरीफायर बिक रहे हैं। तो लोग अपनी स्वास्थ्य को लेकर तो चिंतित हैं, पर कहीं ना कहीं बढ़ते प्रदूषण पे कहीं ना कहीं रोकथाम बहुत जरूरी नजर आ रही है। पर कहीं ना कहीं ये स्पाइक बहुत ज्यादा है। Ji, let me cut across to Anil Chaudhary. Anil Chaudhary is joining us from Ghaziabad, and we saw that Ghaziabad in fact had around 400 AQI index. तो अनिल, आप हमें वहाँ की गाजियाबाद में अभी कैसी स्थिति है? क्या लोग ठीक से सांस ले पा रही है? एयर क्वालिटी की क्या स्थिति है वहाँ पर, हमें जरा बताइए। देखिए, वाकई सुबह से ही जो दमघोटू हवा है बेहद परेशान लोगों को कर रही है। तस्वीरें भी हम दिखाएंगे किस तरीके से जो है सड़कों पर आज सुबह से ही घनी धुंध जो है छाई हुई दिखाई दे रही है। ये पोल्यूशन की वो खतरनाक चादर है जो पूरे गाजियाबाद को इसने आगोश में ले लिया है। इसी तरीके की तस्वीरें पूरे गाजियाबाद में दिखाई दे रही हैं। ऊंची ऊंची इमारतें आज ढक सी गई हैं और साफ नहीं दिख रही हैं। पोल्यूशन का जो लेवल अब लगातार बढ़ा है, जिसके चलते ग्रैप 2 के नियम भी दिल्ली NCR में लागू कर दिए गए हैं। उस लागू होने के बाद तमाम जो अधिकारी हैं उनके द्वारा मीटिंग भी ली जाएंगी। आज तकरीबन 10 बजे के बाद जो है गाजियाबाद के जिलाधिकारी तमाम ऐसी मीटिंग लेने वाले हैं, जिसमें कि ये चिन्हित किया जाएगा कि आखिरकार अधिकारी कहां कहां जाकर और किन किन साइट पर काम करेंगे। और साथ ही उन ऐसी साइटों को जो जहां कंस्ट्रक्शन की साइट चल रही है उनको चुना जाएगा और साथ ही उन पर जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही ट्रैफिक के ऐसे पॉइंटों को चुना जाएगा जहां पर ज्यादा ट्रैफिक है और साथ ही जहां पर वाहनों की आवाजाही को देखते हुए कई ऐसे फैसले लिए जाएंगे। जो तमाम जो ट्रैफिक के अधिकारी हैं वो गाड़ियों को ऐसे चुनेंगे जो कि BS4 से BS6 से नीचे के जो वाहन होंगे सबको प्रतिबंध किया जाएगा और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। क्योंकि ये भी देखा जाएगा कि जो वाहन ज्यादा पोल्यूशन फैला रहा है उस वाहन को तुरंत सीज करने की कार्रवाई भी अब की जाएगी। तो दिवाली का महापर्व है और ऐसे में आज जिस तरीके से सड़कों पर पोल्यूशन की जो मार है वो देखने को मिली है और ये दमघोटू हवा बेहद परेशान के साथ साथ अब आम जनता को बीमार भी कर रही है। तो इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। ये कहा गया है कि यदि जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकला जाए। यदि आप निकल रहे हैं, क्योंकि न्यूज एक्स की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर है, हम हर उस जगह जा रहे हैं जहां पर जिस क्षेत्र में पोल्यूशन ज्यादा है और अपने दर्शकों को अवेयर कर रहे हैं। यदि उस क्षेत्र में जा रहे हैं तो वहां पर मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि गाजियाबाद के कई ऐसे स्टेशन हैं, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पोल्यूशन का खतरा बेहद ज्यादा बढ़ा हुआ है, जो कि रेड जोन में आ गया है। चाहे वो वसुंधरा की बात करें तो वसुंधरा का भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब है। जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका लोनी का है, वहां का भी AQI बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। चाहे वो संजय नगर की बात करें तो संजय नगर में भी इसी तरीके के हालात
बने हुए हैं। तो ये वो इलाके हैं जो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है गाजियाबाद के साथ साथ कई ऐसे अब जो है कदम उठाने की बात चल रही है, क्योंकि अधिकारियों के द्वारा ग्रैब 2 के नियम जब अब लागू हुए हैं तो उसके बाद कई इंप्लीमेंट देखने को मिलेंगे। जो कंस्ट्रक्शन की साइट हैं उन पर फिलहाल रोक लगाने की तैयारी चल रही है। अधिकारी मीटिंग लेंगे और उसके बाद ये डिसाइड होगा कौन से कंस्ट्रक्शन साइट को फिलहाल रोकना है, क्योंकि ये चिन्हित किया जाएगा टीम के द्वारा कि जिस भी साइट पर ज्यादा पोल्यूशन फैलाया जा रहा है उस साइट को चिन्हित किया जाएगा। वहीं मैं आपको बता दूं, जो डीजल के जनरेटर हैं उनको पूर्ण तरीके से प्रतिबंध कर दिया गया है दिल्ली एनसीआर में। और साथ ही मैं आपको बताएं, जो रेस्टोरेंट हैं उनमें भी साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि आप कोई भी कोयले से या कोई भी ऐसी वस्तु ना जलाएं जिससे कि धुआं हो। तो इसको लेकर विशेष जो है गाइडलाइन जारी की गई हैं। और ऐसे में अब तमाम जो अधिकारी हैं, अब जैसे ही मीटिंग होगी उसके बाद जमीनी स्तर पर जो असर है वो देखने को मिलेगा। हालांकि मौसम विभाग और कंट्रोल जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनकी तरफ से कहा गया है 2 या 3 दिन बेहद ज्यादा क्रूशियस रहने वाले हैं, खराब स्थिति हो सकती है, इस तरीके की बातें पहले ही बताई गई हैं। जिससे कि आज दिवाली है, लोगों को खुद भी ध्यान रखना है कि अपने घर के बाहर लगातार जो है पानी का छिड़काव भी करते रहें, साथ ही पोल्यूशन फैलाने से बचें। कोई भी ऐसी वस्तु खुले में न जलाएं जिससे कि पोल्यूशन ज्यादा फैले। जी बिल्कुल, इस तरीके का प्रावधान फिलहाल किया गया है। जी बिल्कुल। I want to cut across to Aditya. Aditya, now we've been seeing that day by day the air quality index has been deteriorating, and the government first implemented the GRAP 1 measures, and now we're seeing that GRAP 2 measures also will be implemented. Could you take our viewers through what those measures were? Because in the GRAP 1 measures, anti-fog guns were deployed, water sprinklers were deployed at India Gate in fact, and we also saw that there was a ban on open fires. So what does GRAP 2 entail, and could you just take our viewers through what all measures the government will now have to take? Well, absolutely. As far as the GRAP 2 measures are concerned, all the old vehicles have been cannot ply on the roads of Delhi. As per the BS4 regulations are required, and all the CNG vehicles are all, as per the GRAP 2. Further restrictions of all the factories that are operating, they have to control their emissions, and all these measures have come under the GRAP 2 measures, and definitely we could see the effect of this in the coming days. Since now the pollution in Delhi is expected to spike, we could see some robust measures from the government of the day. Yes, Shivani. Right. देवेंद्र कौशिक, अगर आप हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं, गवर्नमेंट ने GRAP 2 मेजर्स इम्प्लीमेंट कर दिए हैं, अभी तक दिवाली आई नहीं है, आज दिवाली है, आज रात पटाखे भी यूज़ करे जाएंगे, तो उसके बाद कैसा एयर क्वालिटी होना वाला है? सो आई गो अक्रॉस टू अनिल चौधरी इफ ही स्टिल विद अस। अनिल, आज दिवाली है, आज पटाखे भी यूज़ करे जाएंगे, ऑलरेडी एयर क्वालिटी इंडेक्स इतनी ख़राब हो चुकी है, गवर्नमेंट फेक रेन की भी बात कर रही है, क्लाउड सीडिंग की, क्या उससे राहत मिलेगी दिल्ली वालों को? देखिए, आज ही नहीं, इसका असर कल से ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल भी आपने देखा किस तरीके से छोटी दिवाली और आतिशबाजी जो है लगातार कल रात से ही शुरू हो लोगों ने कर दी है। उसका असर कहीं ना कहीं सुबह मॉर्निंग से ही देखने को मिला है। कई इलाके ऐसे हैं दिल्ली के भी जहां 400 के पार जो है, आनंद विहार की अगर बात करें तो वहां पर 400 के पार जो है AQI पहुंचा, और साथ ही गाजियाबाद के भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर 350 के पास जो है AQI बना है। अब जरूरत है मेजर स्टेप उठाने की, क्योंकि जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ा है और आज दिवाली का महापर्व है, यदि लोगों ने आतिशबाजी अधिक मात्रा में की तो उसका असर सीधा जो हमारा आसपास का वातावरण है उसमें देखने को मिलेगा। तो लोगों को खुद भी अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन की आतिशबाजी में इस तरीके की स्थिति बनी है। तो आप समझिए कि आज मुख्य त्योहार है
हमारा, और किस तरीके से जो दिवाली पर यदि पटाखे छुटाए गए, हालांकि ग्रीन पटाखों को परमिशन दी गई थी, पर उसकी आड़ में तमाम ऐसे प्रतिबंधित पटाखे भी बेचे गए। एनसीआर में लाइन तक लग गई थी, काफी लाइन में लग के लोगों ने जो है बीती रात जो है पटाखे खरीदे हैं। तो कहीं ना कहीं आज लोग उनको जलाएंगे भी, तो उसका असर सीधा सीधा हमारे वातावरण में देखने को मिलेगा। तो ऐसे में जो गाजियाबाद का जिला प्रशासन है और कंट्रोल जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उनकी तरफ से कई ऐसे स्टेप उठाने चाहिए जिससे कि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि जिस तरीके से ग्रैप 2 के नियम अब लागू किए गए हैं, उन नियमों को जमीनी स्तर पर लागू करना ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार पोल्यूशन बढ़ा है और अधिकारियों की तरफ से जो नियम लागू किए जाने चाहिए वो नियम कागजों में जरूर दिखाई देते हैं, पर जो सड़क और जमीन पर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते हैं। वजह यही है जिस तरीके से नियमों का उल्लंघन लगातार जो लोग कर रहे हैं, उसकी वजह से पोल्यूशन का स्तर अब बढ़ता जा रहा है। ये दम घोटू हवा लोगों को बेहद परेशान कर रही है और साथ ही बीमार भी अब करने लगी है। साथ ही मैंने बताया किस तरीके से अब ग्रैप 2 के नियम लागू किए गए हैं, उसके बाद जो है एक्शन जो है देखने को मिलेगा। इस तरीके की बातें अधिकारियों की तरफ से की गई हैं, क्योंकि एक एक्शन प्लान अब तैयार किया जा रहा है जिसमें कि ऐसे वाहनों को भी चुना जाएगा जो ज्यादा पोल्यूशन फैला रहे हैं। ऐसी फैक्ट्रियों की लिस्ट तैयार की जाएगी जो ज्यादा पोल्यूशन फैला रही हैं, और साथ ही ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट को भी चिन्हित किया जाएगा, उनके काम को रोका जाएगा जिन पर ज्यादा पोल्यूशन फैलाने का काम चल रहा है, जो नियम के विरुद्ध चल रहे हैं। ऐसे जो है तमाम ऐसी चीजों पर अब काम करने की बात चल रही है। तो अब देखना यही होगा आखिरकार कब तक अधिकारी जो कागजी चीजें हैं वो जमीन पर लेकर आएंगे और आम जनता के लिए उन चीजों को उतारेंगे, जिससे कि लोगों को जो गाजियाबाद की जनता है उसको कहीं ना कहीं पोल्यूशन से राहत मिल सके। क्योंकि ये दमघोटू हवा लोगों को परेशान ही तो कर ही रही है। क्योंकि मैं अभी यहाँ खड़ा हूं तो मुझे खुद गले में खराश महसूस हो रही है और गला खराब महसूस हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं सड़कों पर खड़ा होना मुश्किल है। पोल्यूशन की स्थिति बेहद खराब श्रेणी में आज सुबह से ही दर्ज है, और जैसे ही अब रात को आतिशबाजी शुरू होगी उसके बाद से हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। जी बिल्कुल। अली खान, अगर आप हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं नोएडा से, नोएडा की भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। 350 क्रॉस हो गया है AQI इंडेक्स वहाँ पर भी क्या ऐसे वायलेशंस हो रहे हैं? क्योंकि जैसे हमें अनिल जी ने बताया गाजियाबाद में बहुत सारे वायलेशंस भी हो रहे हैं, बट गवर्नमेंट ने बोला था कि पेट्रोल टीम्स रहेंगी, सभी चीज़ को मॉनिटर किया जाएगा। नोएडा में क्या हो रहा है? बिल्कुल, नोएडा में भी नियमों की अवहेलना लगातार हो रही है। जो बात अथॉरिटी के अधिकारी कर रहे थे वो कहीं ना कहीं धरातल पे सामने नजर नहीं आ रही है। बेसिकली उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अभी कल की बात बता रहा हूं मैं आपको, जहां 2 कंस्ट्रक्शन साइट्स को नियमों की अवहेलना करने पे 10-10 लाख रुपए का नोटिस दिया है। और उधर दूसरी तरफ नोएडा अथॉरिटी को भी लगातार वो निर्देशित कर रही है, नोएडा अथॉरिटी से लगातार पत्राचार कर रही है कि लगातार वाटर स्प्लिटिंग का काम किया जाए, जो मैकेनिकल स्वीपिंग है उसका काम किया जाए। पर लगातार 2 दिन पहले तक तो मैकेनिकल स्वीपिंग और वाटर स्प्लिटिंग दिखाई दी थी, पर 2 दिन से कहीं ना कहीं वो भी जो धरातल पे है वो चीजें नदारत नजर आ रही है, जिसको लेके पॉल्यूशन काफी स्पाइक है। देखना ही होगा कि आने वाले समय में नोएडा अथॉरिटी और क्या कुछ नियम निकालती है, इसमें क्या कुछ जो नियमों की अवहेलना करे उन पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। ऐसी बहुत सारी कंस्ट्रक्शन साइट्स नोएडा में चल रही है जहां पे नियमों की लगातार अवहेलना हो रही है। डीजी जनरेटर सेट्स का भी इस्तेमाल लगातार नोएडा में बेहद होता है, जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर माना जाता है इंडस्ट्री के लिहाज से। और डीजी जनरेटर सेट जो है, जनरेटर सेट जो होता है डीजल के माध्यम से चलने वाला, उसका इस्तेमाल भी नोएडा में बहुत ज्यादा उसकी खपत है डीजल की। तो उसको भी देखना होगा कि उसको कंट्रोल मनाने के लिए क्या कुछ मेजर्स उठाती है उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और नोएडा अथॉरिटी। वहीं जो वाटर स्प्लिंकिंग का काम है मेजरली वो बहुत बड़े स्तर पर चलाने की जरूरत है, पर जो अभी तक कहीं ना कहीं नदारत नजर आ रहा है। शिवानी जी बिल्कुल। Aditya, we also saw that now it also comes down to the public
who have to actually follow the measures that have been put in place. In fact, under GRAP 2 measures, residents welfare associations are supposed to provide their staff with heaters if there is some open coal burning for heat, and construction sites are supposed to be, they're supposed to stop their work and limit the dust formation. So how do you see this happening? Since today is Diwali, we will also see firecrackers being burnt. So the air quality index will in fact only deteriorate further. Well, absolutely, Shivani. The air quality is further expected to deteriorate even further, because today a lot of crackers will be burned in the night, when the festivity is there. And at this juncture, we could expect the constructions of the houses also to stop, since the GRAP 2 measures have been enforced in Delhi. And there are certain measures, because, all the rules will be flouted by the people tonight. Definitely, crackers will be burnt in large number. Yes, Shivani. Absolutely, Aditya. Thank you for joining us. I thank all my correspondents who joined us to show us the live visuals across Delhi of the rising air pollution levels. That's all that we have for you on this bulletin. We'll see you after a short break.